नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। 122 सीटों के लिए नामांकन शुरू। 11 नवंबर को मतदान, 14 नवंबर को नतीजे। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में तय किए धोखाधड़ी और साजिश के आरोप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगा झटका। भारत और कनाडा के रिश्तों में नई पहल। संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार की गई महत्वाकांक्षी कार्य योजना। व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग पर विशेष जोर। इजराइल हमास संघर्ष विराम। 2 साल बाद थमी जंग। हमास ने रिहा किए 20 इजरायली बंधक। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल प्राइज देने की घोषणा। वर्ष 2025 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार का ऐलान। जोएल मोकीर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को मिला सम्मान। आर्थिक विकास की नई व्याख्या के लिए पुरस्कार। और अब खबरें विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और कनाडा ने व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा और असैन्य परमाणु सहयोग के क्षेत्रों में संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्य योजना तैयार की है। बता दें कि भारत की यात्रा पर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए रचनात्मक चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच संबंध पिछले कुछ महीनों में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और दोनों देश साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तंत्र को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। We are working to restore and reinvigorate the mechanisms necessary to advance our partnership. As Prime Minister Modi noted during his meeting with Prime Minister Carney in Kananaskis, India's approach is to move forward with a positive mindset. This morning you have met the Prime Minister, you have heard from him personally about our vision of cooperation and how best to realize it. I should also take note of the fact that our national security advisors and their teams had a productive meeting on the 18th of September in New Delhi, which was an important first step towards enhancing our security cooperation. Our foreign ministries at the level of secretary or deputy minister also met on the 19th of September to review the overall relationship. Our trade ministers spoke recently, actually on the 11th of October. So when we look at Canada, we see a complementary economy, we see another open society, we see diversity and pluralism, and we believe that that is the basis for a close, sustainable and long-term cooperative framework. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक घटनाक्रमों और साझा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने माना कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते भू राजनीतिक तनावों के बीच एक मजबूत और लचीला भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंध आवश्यक है। दोनों महत्वाकांक्षी सहयोग रोड मैप पर भी सहमत हुए। Both sides for our meeting today have prepared an ambitious road map to advance our cooperation in various domains, including trade, investment, agriculture, science and technology, civil nuclear collaboration, AI, critical minerals, and energy. I'm glad that the two High Commissioners have assumed their responsibilities in our respective capitals. Our responsibility as foreign ministers is to shepherd the process of rebuilding our cooperation and to ensure that it delivers on the expectations of our prime ministers and the interests of our people. It means not only taking initiatives in our particular jurisdiction, but to monitor and integrate interactions across the entire breadth
of the government. I look forward to doing so, working closely with you. Minister, India and Canada have a long tradition of being active in world affairs. We are members of the G20 and the Commonwealth. Our convergences in the Indo-Pacific are notable. We are strong proponents of effective multilateralism, climate action, and SDG Agenda 2030. We seek to de-risk the international economy today by forging strong partnerships of growing range and depth. बैठक में कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने सुरक्षा मामलों में भारत के साथ प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें संबंधों को और मजबूत करने के महत्व पर सहमत हैं। I want to first and foremost extend my appreciation to you for the conversation that you and I have had since I was appointed as Canada's Minister of Foreign Affairs on May 13th. Equally, Prime Minister Carney was pleased to welcome Prime Minister Modi to the G7 summit in Kananaskis, where they had a productive bilateral engagement, which very much informs the conversation that we are having here today. I want to suggest that the cooperation that we have seen from your side and certainly very welcome. And today we'll be discussing the India-Canada joint statement, which is comprehensive and covers a number of issues that will allow us to continue the work to elevate the bilateral relationship. कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम जारी रखने पर जोर दिया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की भी बात कही। I appreciate the words you spoke relating to the security dialogue, which while we elevate the relationship in areas of critical minerals, energy, AI, and climate, to name a few, will continue. The meeting that our officials had relating to security and law enforcement just a few weeks ago here was very productive, and that dialogue will continue. Both of our governments agree on the importance of those dialogues. Both of our governments agree on the importance of elevating the relationship going further. So this joint statement will discuss our mutual plans for re-engagement. It will inform Canadians and Indians alike that we are collectively committed to advancing this relationship now and in the long term, particularly when it comes to our mutual priorities in the Indo-Pacific. कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी भारत यात्रा से द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति मिलेगी। यह यात्रा भारत कनाडा द्विपक्षीय साझेदारी को नई गति देने के लिए जारी प्रयासों में योगदान देगी। प्रधानमंत्री ने व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि और दोनों देशों के नागरिकों के बीच संबंधों में दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जून में G7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा की अपनी यात्रा को याद किया और कहा कि उस दौरान उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ बेहद सार्थक बैठक की थी। बिहार चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही राजनीतिक हलचलें भी तेज हो गई हैं। बता दें कि इस चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। इनकी जांच 21 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से
दिन के 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने नामांकन केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। 243 सदस्यों के बिहार विधानसभा के लिए दोनों चरणों के मत की गिनती 14 नवंबर को होगी। 7 करोड़ 82 लाख मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। दूसरे चरण में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिलों में मतदान होगा। इसके अलावा भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है। आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर आरोप तय किए। लालू यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भी धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए हैं। यह मामला रांची और पुरी स्थित 2 आईआरसीटीसी होटलों के टेंडर आवंटन में भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि होटल आवंटन के बदले में परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए जमीन सौदे किए गए थे। अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 29 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बीजेपी ने आरजेडी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि घोटाले, सरकारी ठेके देने में हेराफेरी और नौकरी का वादा कर लोगों की जमीन हड़पना राजद का शासन मॉडल है। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो, और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो पहली कहानी तो ये है कि चले हैं तेजस्वी बाबू बिहार बदलने और 420 का आरोप तय कराकर अपने खिलाफ। अब 420 क्या होता है आपको तो बताने की जरूरत नहीं। धोखाधड़ी, सजा 7 साल, कॉन्स्पिरेंसी 120B। तो कौन सा बिहारा बनाने वाले हैं जब आपकी ये छवि है और आपके खिलाफ कोर्ट ने ये पाया है। और अब एक नजर देश और दुनिया के कुछ और बड़े अपडेट्स पर। लद्दाख से आई महिलाओं और बुजुर्गों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। यह समूह राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन आया था। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 9,300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। वो नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी नव विधान न्याय की नई पहचान के उद्घाटन के लिए जयपुर पहुंचे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून लोगों को समय पर सुलभ तरीके से और सरलता से न्याय दिलाने का काम करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विकसित भारत बिल्डथॉन का उद्घाटन किया। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य 6वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को वास्तविक जीवन की चुनौतियों से निपटने वाले नवोन्मेषी विचार विकसित करने के लिए प्रेरित करना है। अब तक के सबसे बड़े स्कूल हैकाथॉन के रूप में स्थापित यह सोमवार से देश भर के स्कूलों में कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 की शुरुआत की। यह पहल सेवानिवृत्ति निधि का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ के माध्यम से श्रमिकों को संगठित सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए है। यह योजना 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने 2009 से 2016 तक छूटे हुए पात्र कर्मचारियों के नामांकन के लिए 2017 में इसी तरह का नामांकन अभियान चलाया था। व्यापार वार्ता के लिए भारत के वरिष्ठ अधिकारियों का दल इस सप्ताह अमेरिका की यात्रा करेगा। प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है।
इस वर्ष फरवरी में दोनों देशों के नेताओं ने अधिकारियों को प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत करने का निर्देश दिया था। इस समझौते के पहले चरण को 2025 की अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने की योजना है। अभी तक 5 दौर की वार्ता पूरी हुई है। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में घटकर 1.54% रह गई, जो पिछले महीने 2.07% थी। जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह कमी सब्जियों और दालों सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के कारण हुई है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में 5.49% थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज दिल्ली पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों, वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारिक और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी प्रगाढ़ होने की उम्मीद है। फ्रांस के नवनियुक्त प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकार्नो ने नई सरकार का गठन किया, जिस पर तत्काल बजट पेश करने और राजनीतिक उथल-पुथल को शांत करने का दबाव है। मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के मध्य मार्गी खेमे और सहयोगी रूढ़िवादी दल के कुछ जाने पहचाने चेहरों को शामिल किया गया है। साथ ही राजनीतिक क्षेत्र से बाहर के कुछ लोगों को भी इसमें स्थान दिया गया है। नवाचार पर आधारित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए जोएल मोकेर, फिलिप एगियर और पीटर हॉविट को इस वर्ष का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की आज घोषणा की गई। मोकेर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से, एगियन कॉलेज डी फ्रांस और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तथा हॉविट ब्राउन यूनिवर्सिटी से हैं। वेस्टइंडीज के साथ दिल्ली में खेले जा रहे दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच को जीतने और सीरीज में क्लीन स्वीप करने के लिए भारत को अब केवल 58 रन की जरूरत है। वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाकर भारत के सामने 121 रन का लक्ष्य रखा। भारत चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 63 रन बनाए हैं। और अब कुछ और खबरें। अमेरिकी की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम और बंधकों को रिहा करने के समझौतों को समर्थन जताने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजराइल पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि इस समझौते ने युद्ध को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। इसने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के द्वार खोल दिए हैं। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैन्य बैंड की धुन के बीच ट्रंप का स्वागत किया। तेल अवीव के होस्टेज स्क्वायर में भीड़ ने ट्रंप के स्वागत में नारे लगाए। 2 वर्ष के युद्ध के दौरान होस्टेजेज स्क्वायर प्रदर्शकों का केंद्र रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित किया। After 2 harrowing years in darkness and captivity, 20 courageous hostages are returning to the glorious embrace of their families, and it is glorious. 28 more precious loved ones are coming home at last to rest in this sacred soil for all of time. And after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. एक नया सूर्य उदय हुआ है जहां अब सिर्फ शांति है, बोले राष्ट्रपति ट्रंप। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप अब मिस्र जाएंगे, जहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी शर्म अल शेख में गाजा और पश्चिम एशिया के वृहद क्षेत्र में शांति को लेकर 20 से अधिक देशों के नेताओं के साथ एक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व करेंगे। इजराइल और मिस्र दोनों ने घोषणा की कि ट्रंप को उनके देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा।
हमास ने आज शेष बचे 13 जीवित बंधकों को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन रेड क्रॉस के अधिकारियों को सौंप दिया। इजराइल की सेना बंधकों को अब इजराइल ले जाएगी। गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच 2 साल के युद्ध के बाद सफल युद्ध विराम के तहत बंधकों की यह पहली रिहाई है। बंधकों की स्थिति के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। हमास ने कहा है कि इजराइल द्वारा बंदी बनाए गए 1900 से अधिक फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जाएगा। इजराइल की ओर से रिहा किए गए 154 फिलिस्तीनी कैदियों को मिस्र भेजा गया है। बंधकों के परिवारों और दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फिलिस्तीनी भी इजराइल द्वारा बंधक बनाए गए सैकड़ों कैदियों की रिहाई का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध के कारण भूखमरी का सामना कर रहे गाजा में मानवीय सहायता में वृद्धि की उम्मीद है, जहां लाखों लोग बेघर हो गए हैं। अमेरिकी की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम और बंधकों को रिहा करने के समझौते को समर्थन जताने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंचे। गाजा में मानवीय सहायता के प्रभारी इजरायली सैन्य निकाय ने कहा कि समझौते के मुताबिक रविवार को सहायता की मात्रा बढ़कर लगभग 600 ट्रक प्रतिदिन हो जाने की उम्मीद है। और अब देखते हैं देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री को 14 और 15 नवंबर को विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाले CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। ये विधानसभा क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर में बड़गाम और नगरोटा, राजस्थान में अंता, झारखंड में घाटशिला, तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरनतारन, मिजोरम में डंपा और ओडिशा में नुआपाड़ा। जम्मू कश्मीर और ओडिशा के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 20 तारीख है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर के आवास विकास मैदान में आयोजित सहकारिता मेले में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 7 दिवसीय इस मेले से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन्वेस्ट यूपी शासी निकाय की पहली बैठक में प्रदेश के औद्योगिक निवेश ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित एक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने शिमला के रिज मैदान के दौलत सिंह पार्क में हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। सोनिया गांधी ने प्रतिमा का उद्घाटन करने के बाद अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ दिवंगत नेता को पुष्पांजलि भी अर्पित की। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान करूर में हुई भगदड़ की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस भगदड़ में 41 लोग मारे गए थे। बेंच ने घटना की सीबीआई जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित करने का भी आदेश दिया है। और खबरों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं मुंबई में आयोजित कोरियन हार्मनी फेस्टा में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के प्रदर्शन के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।